Figure shows front view and top view of an object. Draw isometric view. So front view is given and top view is given. So by using this two view, we need to construct the isometric view. Okay. So we need to, like I said, in every problem we need to follow the cube concept. Okay. So 30-degree base, 30-degree length, width and height. Okay. So first we need to find the overall length of this object. How much? So you see 50 mm is given. So this is 50. Height how much given? 50. Okay, in front view we are getting two dimension, that is length of the object and height. Next, where to find the width, or where will we get the length, we get the width in top view. So how much width? You can see here 20 plus 10 plus 20, so total 50. Okay, so length is 50, height is 50 and width is 50. Okay, so like I mentioned, in every problem you can interchange this. Okay, you can take length this side and you can take width this side. It is completely your choice. Okay, so I will take length this sides. So this is height and this is width. Okay, let's construct the isometric view. So initially we need to draw this line. Okay, mark one reference point. Okay, next mark these 30-degree angles. Okay, next from this angle draw one line of length how much, width how much? 50. Width is 50. Width 50. Next length how much? Length again 50. Okay, length again 50. Next height how much? 50. And 50. Okay, please use the roller scale and join these points. So this box need to draw very light. Okay, so please use the roller scale, then only you will get the parallel lines. Okay, so we have constructed one box of size how much? 50, 50, 50. Okay, so let's start with the front view. Okay, in front view what you will see? You will see this portion. Okay, you will see this portion and you will see this portion. Okay, so first concentrate on this part. Okay, so this L shape. Okay, so what are the dimensions? So this is 50, so this is already 50. Height how much? Height 50, so this is already 50. Okay, so this is 50, 50. Next, this is how much? This is 15. Okay, so from this point, so from this point 50 mm, mark 50 mm. Okay, next, so this height how much? So this is total 50. 50 minus 15, 35. So from this point 35. Okay, and next join this one. Okay, so why I have started the front view this side, why not this side? You can see I have taken the length this side. Okay, length. Okay, so in front view you are seeing two dimensions, that is length and height. So this is our length and this is our height. Okay, so that's why I am starting from this side. Okay, next. Okay, so I have drawn this one. Okay, I have drawn this one. Okay, next you can extend this. Okay, so this is our length, this is our height. Okay, next you need to show the width. Okay, you can show this width. Okay, just you need to extend this. Make sure that each line should be parallel to one another.
ओके, नेक्स्ट ऑल्सो वी नीड टू शो विड्थ टू दिस पॉइंट। ओके, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में हमको ये दिख रहा है। टॉप व्यू से देखने के बाद ये जो लाइन है, अगर हमको इसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखने वाला है, ये हमको एक बॉक्स दिखने वाला है ऐसा। ओके, जब हम इसको टॉप व्यू से देखोगे ना, इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। इफ यू ऑब्जर्व दिस पार्ट फ्रॉम द टॉप व्यू, व्हाट यू विल सी, यू विल सी वन रेक्टेंगल बॉक्स। ओके, you will see one rectangle box. Okay, so what is this length how much, 15. So this is already 15. Okay, and how much, this is width how much, 50. So this is already 50. Okay, so just we need to draw one line which is parallel to this and passing from this point. Okay, suppose if you observe this line from the top, what you will see, you will see one rectangle. Okay, so what is the length 50 mm. So this length is already 15 mm. Just we need to show this width how much, 50. So this is already 50. Okay, so now which portion is remaining? Okay, so we have shown this part. Okay, we have shown front view as well as in top view. Okay, फ्रंट व्यू में हमने इसका लेंथ दिखाया, हाइट दिखाया है, और टॉप व्यू में इसका विड्थ। अभी पेंडिंग क्या है, ये जो रिब पोर्शन है। ठीक है, फ्रंट व्यू में ये रिब पोर्शन सामने की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसको टॉप व्यू से देखोगे नाम, ये जो रिब अब टॉप व्यू से देखोगे तो कहां अपियर हो रही है, ये सेंटर में अपियर हो रही है। ओके, सेंटर में। ओके, फ्रंट व्यू में ये रिब कहां पे अपियर हो रही है, सामने, लेकिन जब हम रिब को यहां से टॉप व्यू से देखोगे ना, तो ये रिब कहां पे अपियर हो रही है, यहाँ पे देखो सामने भी अपियर हो रही है। ठीक है, सो वी नीड टू शो दिस इन दिस मिडल पार्ट। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये 50 है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में ही है। ओके, तो यहां से 20। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से 20 लेता हूं। ओके, यहां से 20, यहां से 20। ठीक है, 20। नेक्स्ट इसका विड्थ का सॉरी रिब का विड्थ कितना है, 10 है, तो मैं यहां से 10 मार्क करता हूं फिर से। ओके, यहां से 20 10। ठीक है, नेक्स्ट ये रिब किसको कनेक्ट किया हुआ है, देखो यहां से यहां तक है। ओके, यानी कि फ्रंट व्यू ये नीचे यहां पे कौन सा पॉइंट है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर से यहां से सेम डायमेंशन लेता हूं, यहां से फिर से 20 और उसके बाद 10। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू जस्ट दिस ज्वाइन दिस 2 पॉइंट। ऐसे हमको ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं सिर्फ। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ वी नीड टू शो द अदर पार्ट ऑफ दिस रिब। ओके, क्योंकि सारे लाइंस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये जो रिब है फ्रंट व्यू में सामने की तरफ आ रही है, लेकिन जब हम इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये रिब कहां पे है, यहां पे है, सेंटर में है। ठीक है, तो हमने सेंटर में दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हमको यहां से ये पॉइंट रेफरेंस लेना है और ये हमको दिखाना है, ये वाला लाइन, ये और ये दिखाना है हमको अभी। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, देखो ये टोटल कितना है, 50 है। ओके, 50 माइनस 15 35 है, तो यहां से 35। ओके, इस पॉइंट से 35, लेकिन जब 35 लोगे तो इस लाइन का रेफरेंस लेना है आपको। तो ये लाइन इसको एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 35 लिया है। 35 क्यों, यहाँ पे देखो यहां से कितना है, 35 है। ओके, 50 माइनस 15 35। ठीक है, नेक्स्ट ये हमको सिर्फ ये ऐसे ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन, तो ये हमने ये दिखाया है, अभी ये इसको कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, सिर्फ ये ऐसे इसको कनेक्ट करना है, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, बाद में ये पॉइंट आपको ज्वाइन करने। अभी ये लाइन यहां पे नहीं दिखा है फ्रंट और टॉप में, तो आपको इमेजिन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसमें पेंडिंग क्या है, इस ब्लॉक का बैक साइड पेंडिंग है। ठीक है, तो बैक साइड यानी कि ये वाली लाइन, ये जो है ये पीछे यहां पे भी रहेगी, बैक साइड भी रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस लाइन का रेफरेंस लेना है, इस लाइन का, वर्टिकल लाइन का। ओके, वर्टिकल लाइन का, और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
ओके, ये जो लाइन है ये इसको मैच होना चाहिए, इस लाइन को। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे, तो इसका हाइट कितना है, ये 35 है, तो यहाँ पे आप 35 ले सकते हो, ऐसे 35। ओके, नेक्स्ट, ये जैसी लाइन है ये यहां पे भी रहेगी, जहां पे ये है ना, तो ये बैक साइड भी रहेगी ऐसे। तो क्या करना है, इस लाइन का रेफरेंस लेना है आपको, इस लाइन का ऐसे रेफरेंस लेना है और इसको सिर्फ ज्वाइन करना है ऐसे। ऐसे इसको लाइन को कॉर्नर में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी हमारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जो विजिबल पोर्शन है वो हमको डार्क ड्रॉ करना है। थ्री डी जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो इमेजिनेशन यूज होगा। जितना आपका अगर इमेजिनेशन ठीक है तो आप करेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। ओके, ऑर्थोग्राफी के लिए क्या करते हैं हम, 2D को हम 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए, क्योंकि सारे लाइन फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो मिसिंग लाइन है वो आपको विजुअलाइज होना चाहिए। 3D ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देखो, तो जब ये हमारा फ्रंट व्यू है, फिर तो फ्रंट व्यू में देखने के बाद हमको क्या दिखेगा, क्रॉस चेक करो आपका आंसर, ये दिखने वाला है, ये यल शेप दिखेगा। ठीक है, तो जब हम फ्रंट व्यू में देखोगे, ये जो रिप पोर्शन है ये कहां पे अपीयर होने वाली है, ये यहां पे अपीयर होगी। ओके, यहाँ पे ये सामने की तरफ आएगी। जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये रिप कहां पे अपीयर होगी, यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे देखो, फ्रंट व्यू चेक करो, ये यहाँ पे सामने ड्रॉ किया है। सेम रिप अगर आपने टॉप व्यू से ऑब्जर्व किया है, सेम रिप, तो ये कहां पे दिखेगी, ये यहाँ पे दिखेगी। तो टॉप व्यू में हमको क्या दिखने वाला है, ये दिखेगा टॉप व्यू में। और ये रिब है, ये रिब टेपर है, लेकिन जब हम इसको टॉप व्यू से देखोगे तो क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो टॉप व्यू में हमको क्या दिखने वाला है, ये दिखेगा, ये रिब दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पे उन्होंने सेम ड्रॉ किया है। ठीक है, ये टॉप वाला पोर्शन है, ओके, और सेंटर में रिब है, और उसके बाद ये साइड वाले दो पोर्शन, ये साइड वाले दो पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको विजुअलाइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हुआ तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको डायमेंशनिंग करो। तो ये 50 है, हाइट भी 50 है, इसका विड्थ भी 50 है। So this is how you need to construct the 3D object.